Hi everyone, welcome to my channel. And I just thought of telling you about my PCOS story because I know that a lot of women and girls in present era is suffering from this problem. So I just thought of giving a talk about how my story goes. So first things first, how do you diagnose the PCOD? In my case, I started seeing a few symptoms, and those were first of all, I had a lot of acne in all this area and all this area above my lips and in between my eyebrows. I had a lot of acne, and also I started gaining weight all of a sudden. I gained a lot of weight, and also the third thing is I started missing my periods. That is when I thought there is something concerning. My mother took me to a gynac, and there sonography and a blood test was done. So through sonography, you get to know that whether your ovaries have cysts, and if your ovaries have cysts, you probably are having polycystic ovarian syndrome. Also, my blood test reports justified that I had hypothyroidism also. That means my thyroid gland is underactive, and because of that, there is low secretion of thyroid, and because of that, I'm gaining weight. So, if you're having PCOD and thyroid together, see these two goes hand in hand. Both these things go hand in hand, and if you are having PCOD, there is likely not compulsory, there is likely that you will be having thyroid issues also. Okay, both of these are somehow related and are lifestyle problems. That is what at least my doctor said. So my blood report said that I was having thyroid issues, and my sonography report confirmed that I am diagnosed with a disease, not a disease, a lifestyle disorder, okay? That is polycystic ovarian syndrome. And because we had never heard of this before, my mother and I was shocked that what is this thing that is causing so much of problem. And that is when the doctor said that due to lifestyle, bad lifestyle, bad eating habits, lack of exercise, your ovaries develop cysts, because of which you are having irregular cycles, and it comes on with a lot of more problems. And the problems that I was facing were, yes, these three. I was having a lot of acne, I was gaining a lot of weight, and I was missing my periods. Some people may suffer from some other problems as well. In some people's case, they have lean PCOS. Okay, they do not gain weight, but they have PCOS. Okay, this is a thing that I came to know after some time. मुझे नहीं पता था कि there is something known as lean PCOS. मुझे ऐसा ही लगता था कि जिन्हें भी PCOS है वो weight gain ही करते होंगे. Okay, so apart from this, there is a symptom where you grow a lot of hair on face like men, because PCOS increases male hormones in our body. But very luckily, this is a problem that I never faced. मेरे face पे या फिर मेरे पूरी body पे कभी भी उतने excessive नहीं hair आए, just like men, and this doesn't happen in my case. लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर आते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू कंट्रोल योर हॉर्मोन्स. ओके, सो विद दिस यू नो कि पीसीओडी डायग्नोज कैसे होता है. ओके, आपका सोनोग्राफी किया जाएगा, एंड थ्रू दैट सोनोग्राफी आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरीज में सिस्ट्स हैं. ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि दैट यू हैव पीसीओडी. अब आफ्टर गेटिंग डायग्नाइज्ड विद पीसीओडी, व्हाट हैपेंड? ओके, हमें तो नहीं पता था कि देयर इज समथिंग लाइक पीसीओडी. सो व्हेन वी कंसल्टेड गायनाक, एंड शी सेड कि अब ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू पिल्स फॉर गेटिंग योर पीरियड. ठीक है, एंड शी गिव मी आई पिल. यस, आई पिल, वो जो इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट, तो उसे फिर इन ऑर्डर टू टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ गिवन इज आई पिल. तो उन्होंने मुझे आई पिल दे दिया. And to any girl who is new to this problem and is watching my video, please do not make this mistake. आई pills नहीं लेने, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेने, बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, बिकॉज वो आपके साइकिल को थोड़ी टाइम के लिए रेगुलेट कर देंगे, लेकिन इट इज़ हैविंग वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी.
नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव सीन कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास अब जब आप जाओगे तो वो सबसे पहली चीज़ यही देते हैं, आई पिल्स देते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर पीरियड। और उसके बाद फिर माई गायनेक ऑल्सो सेड कि यू फर्स्ट हैव टू टेक दिस आई पिल, इसके बाद फिर आपके पीरियड्स आएंगे, फिर आपको ये लेना है, फिर पीरियड्स आएंगे, लाइक दिस यू विल हैव टू गो थ्रू दिस pills for 4 to 5 months, and after that your periods will be regular. But no, this doesn't happen, and please do not make this mistake. ठीक है, तो मैंने आई पिल लेना स्टार्ट कर दिया। एंड अनदर थिंग वाज मेरी थायराइड की मेडिसिन चालू कर दी गई। द फर्स्ट डोजेज दैट आई वाज प्रिस्क्राइब्ड वाज थायरॉक्स 25 से मेरी डोजेज स्टार्ट हुई है। एंड बढ़ते बढ़ते आई एम टेकिंग थायरॉक्स 88। ठीक है, ये बढ़ते ही जाता है अगर आप अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो। सो दिस इज़ ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। इफ़ यू आर समवन जैसे अर्ली सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ 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 बी वेरी कॉशियस। आई नो इफ़ यू आर अ फूडी लाइक मी और आप थोड़े से आलसी भी हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस। डू एनी थिंग दैट यू कैन। मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि क्या क्या करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन येस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे मुझे पीसीओडी डायग्नोज होता है एंड दिस इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ मेडिकेशन दैट आई वाज गॉन थ्रू। ठीक है, मुझे पीरियड्स रेगुलर करने के लिए आई पिल्स दिए गए एंड थायराइड कंट्रोल करने के लिए थायराइड की मेडिसिन चालू कर दी गई। एंड आई वाज टोल्ड कि अब मुझे ये आजीवन खाना पड़ेगा। और मैं मुझे अभी तक भी मैं खा रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी तक तो मैं खा ही रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो फिर मेरे थायराइड ऊपर नीचे हो जाते हैं और जैसे ही वो होते हैं मैं फिर से आई स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। तो मुझे खाना पड़ रहा है। आई स्टिल डू नॉट नो कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं, लेकिन मैं तो ले रही हूँ। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई टोल्ड यू कि कैसे मुझे पीसीओडी डायग्नोज हुआ एंड सबसे पहले क्या हुआ मेरे साथ, सबसे पहला कौन सा मैंने मेडिकेशन लिया। इसके बाद तो फिर काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगी आगे। तो फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल कंक्लूड कि आपको कैसे पता चलेगा अगर आपको इसमें से कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर if you are gaining weight, okay, if you are experiencing extreme hair fall, अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है, दिस इज़ अ वेरी मेन थिंग। अगर इरेगुलर है एंड इवन इफ़ यू हैव वेरी स्कैंटी पीरियड, ठीक है, बहुत कम अगर आता है ब्लड फ्लो आपका, तो भी अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहा है, वेट गेन बहुत सडन हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं देन यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। और मैं आपको इसमें कंक्लूड करके ये भी क्लियरली कह रही हूँ कि आप कंसल्ट करिए, सोनोग्राफी अपनी करवाइए और उसके बाद फिर एकदम आँख बंद करके किसी भी गायनेक पे भरोसा करके आई पिल्स लेना मत स्टार्ट करिएगा। मेरे केस में आई टुक आई पिल्स एंड उससे मेरा वेट गेन होना और बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्लीज़ आई पिल्स मत लीजिएगा। ठीक है, आप थायरॉक्स की अपनी अगर थायराइड साथ में आपको डिटेक्ट हुआ है तो आप उसकी मेडिसिन लेना चालू कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 do not take those contraceptive pills. That was the first mistake that I ever made in this journey. Okay, okay, we'll meet you in the next video जहाँ पे मैं आगे की स्टोरी बताऊँगी कि क्या होता है। Till then, thank you so much for watching my video and please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.